Hello students. So today we are going with lesson 2 of chapter 1. In this part, your first topic is distribution of particles in two equal size compartments. मतलब suppose करो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ number of particles ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ two equal size compartments ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ particles ਦੀ distribution ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁਆਇਨਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੋ ਕੁਆਇਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰੋ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਡ ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਟੇਲ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਟੇਲ ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹੈਡ ਆਏ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੈਡ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਟੇਲ ਆ ਜੇ. ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ 4 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੁਆਇਨਸ ਨੇ ਜਾਂ 4 ਕੁਆਇਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਆਇਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਨੇ. ਮੀਨਸ ਕੀ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ. ਮੀਨਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਕਾਪਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਇਨਸ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਕੁਆਇਨਸ ਕਾਪਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਆਇਨਸ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਆਇਨ ਗੋਲਡ ਦੇ ਹੋਣ. ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ. ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ. ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ. ਨੋਟਸ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, 1 ਪਾਰਟੀਕਲ 2 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ, 2 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ. ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ A ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਫਸਟ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਫਸਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੋਊਗਾ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ 2 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ. ਮਤਲਬ 2 ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ 2 ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਹੈ 2 ਪਾਰਟੀਕਲਸ 2 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ, 2 ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, 2 ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਨੇ. ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ 2 ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ A ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ B ਹੈ. ਹੁਣ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਸਟ 'ਚ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ A ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 1 'ਚ ਹੈ B ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 2 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ B 1 'ਚ ਹੈ A 2 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 1 ਖਾਲੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨੇ B 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 2 'ਚ ਪਏ ਨੇ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ, 4 ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਿਆ. ਦੇਖੋ 1 2 3 4 ਕਲੀਅਰ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਨਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਨੇ, ਇਨਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੇਮ ਨੇ, A ਨੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 1 'ਚ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 1 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 2 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ A ਨੇ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ. ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 2 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਨਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 4 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ 2 raised to the power 2 ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਬਣੇ ਨੇ. ਮੈਨੇ 2 raised to the power 2 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, 2 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ. ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕੇਸ ਸੀ 2 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਬੇਸ ਬਣੂਗਾ
दो कंपार्टमेंट जिन्ने पार्टिकल्स ने ਉਹਦੀ पावर च आ जाएंगे उन्ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਬਣਨਗੇ। देखो ਇੱਥੇ बेस ਕੀ ਹੈ 2, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ 3 ਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਂਦਾ 3 ਆਂਦਾ। ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, 3 ਪਾਰਟੀਕਲਸ 2 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਨੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਹੋ ਗਏ। 3 ਕੀ ਨੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਨੇ A B C। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਲੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ A B ਪਏ ਨੇ C 2 ਚ ਪਿਆ, इधर बी सी पे है या इधर ए पे है, सी ए पे है इधर बी पे है, इधर ए पे है बी सी पे है, बी पे है सी ए पे है, इधर फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सी पे है, कंपार्टमेंट 2 ਚ ए बी पे है, फर्स्ट कंपार्टमेंट खाली है, 3 ਦੇ 3 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 2 ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8, ਇਹਦੇ 8 ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਬੇਸ, 2 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ 2⁻3। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 8 ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਇਨ ਹੈ, ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੁਆਇਨ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, 1 ਕੁਆਇਨ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 2 ਨੇ ਨਾ, ਹੈਡ ਜਾਂ ਟੇਲ, ਤਾਂ 2 ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈਡ ਟੇਲ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੁਆਇਨਸ ਨੇ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੁਆਇਨ ਦੀਆਂ 2 ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਹੈਡ ਜਾਂ ਟੇਲ, ਉਹ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਆਇਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ 4, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਡ ਟੇਲ ਟੇਲ ਹੈਡ 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 ਟੇਲ ਟੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਕੁਆਇਨਸ ਨੇ, 8 ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 8 ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 6, 6 ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 6 ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, 6 ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4 5 6, ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 2 ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ 6⁻2 36। मतलब अगर तुसी 2 डाइस थ्रो करते हो तो उत्थे 36 वेज दे नाल तुहाडे नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है जी, तो इन्हां नूं असीं बोलदे हां माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। डिफरेंट अरेंजमेंट्स ने जिहड़े उन्हां नूं असीं की बोलदे हां माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। हुण देखो सिमिलरली इत्थे पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल ने। इनडिस्टिंग्विशेबल के केस की हुई 3 पार्टिकल 2 कंपार्टमेंट्स, 3 एक च आ गए खाली, खाली 3 एक च आ गए, 2 एक च आ गए, 1 एक च आ गया, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गए। उस तो इलावा यदि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब पार्टिकल्स ਦੇ डिस्टिंग्विशेबल या इनडिस्टिंग्विशेबल होने ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ चेंज हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ਤੇ इफेक्ट ਪੈਂਦਾ है। उस तो बाद नैक्सट है जोड़ा कि इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, देखो थोड़े सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 पार्टिकल्स इन 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स। ते पार्टिकल्स की ने डिस्टिंग्विशेबल ने, मतलब कि सारे पार्टिकल्स की ने अलग अलग ने। अगर थोड़ा पेपर से क्वेश्चन आता है तो ये सारा टेबल तुसी एज इट इज़ बना के आना है। तो हुण माइक्रो स्टेट्स असीं देखते हैं। माइक्रो स्टेट्स में तुहानूं दस्सिआ माइक्रो स्टेट्स की ने नंबर ऑफ पॉसीबल अरेंजमेंट्स, जिन्ने अरेंजमेंट पॉसीबल हो सकते हैं। तो हुण अगर तुसीं इत्थे देखो साडे कोल 2 कंपार्टमेंट ने 4 पार्टिकल्स ने, तो कितना हो गया तुहाडे कोल 16। ਇਹਦਾ मतलब तुहाडे 16 केस बनने चाहिए ने इस केस च। तो आपां बना के देखते हैं। देखो कंपार्टमेंट 1 कंपार्टमेंट 2 4 पार्टिकल एक चले गए, सैकेंड कंपार्टमेंट खाली है। उस तो इलावा तुहाडे कोल आ पॉसिबिलिटीज़ बनदी है कि 3 3 3 एक च ने, 1 1 सैकेंड कंपार्टमेंट च है। सिमिलरली 2 एक च ने, 2 एक च ने। ठीक है बेटा, ये तुसीं देख सकते हो
क्लीयर। उस तो बाद 1 3 की कॉम्बीनेशन है। 1 च D इधर हो गया, बाकी 3 इधर हो गए, A इधर हो गया, B C D इधर हो गया। नैक्सट कॉम्बीनेशन की है, कंपार्टमेंट 1 खाली है, 4 दे 4 सैकेंड कंपार्टमेंट च चले गए। तो अगर असी इस सारे टेबल नूं ध्यान नाल देखीए तो इत्थे साडे कोल अरेंजमेंट्स की बन रहे ने 4 0 4 0, पहले च 4 अगले च 0, 3 1 3 1 की कॉम्बीनेशन, 2 2 की कॉम्बीनेशन, 1 3 की कॉम्बीनेशन, 0 4 की कॉम्बीनेशन। मतलब ये साडे की ने ये जिहड़े ये डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इत्थे हुण असीं अरेंजमेंट नहीं कंसीडर कर रहे, असीं सिर्फ उहदी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं भी किहड़े कंपार्टमेंट दे विच किन्ने पए ने, किस किस तरीक़िਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹ नहीं देख रहे। तो इस टर्म ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं मैक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट मतलब ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ डिस्ट्रीब्यूशन ਬਾਰੇ पता है भी एक कंपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं मैक्रो स्टेट्स। नैक्सट है फ्रीकुएंसी। ये जिहड़ी टर्म है फ्रीकुएंसी, इनू असीं थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं। दोबारा बोल रही हूँ मैं टर्म, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ मैक्रो स्टेट। हाँ जी बेटा, टेबल दे विच आ टर्म है फ्रीकुएंसी, इनू असीं थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं। देखो थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ मैक्रो स्टेट। एक मैक्रो स्टेट दे विच किन्नियां माइक्रो स्टेट्स ने, उन्होंने असीं फ्रीकुएंसी बोल सकते हैं या असीं इहनूं थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। हुण जिवें मैक्रो स्टेट है, ये 4 0 है, मतलब पहले दे विच 4 ने, सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच कोई पार्टिकल नहीं है, तो ये किन्ने केस पॉसीबल ने, 1 सानू दिख रहा है 1 ही बनया साडे कोल केस 1। जे असीं 3 1 वाली मैक्रो स्टेट देखते हैं, 3 1 फर्स्ट च 3 ने, सैकेंड च 1 है, उहदी किन्ने अरेंजमेंट पॉसीबल ने, 1 2 3 4 4 आ गया। 2 2 वाली कॉम्बीनेशन दे 1 2 3 4 5 6 6 अरेंजमेंट्स पॉसीबल ने, इन्हां नूं असीं माइक्रो स्टेट्स बोलते हैं बेटा। जिहड़े डिफरेंट अरेंजमेंट्स ने उन्हां नूं की बोलते हैं, माइक्रो स्टेट्स। 1 3 वाली कॉम्बीनेशन 1 2 3 4 4, 0 4 वाली कॉम्बीनेशन 1। तो ये टर्म की है, इनू फ्रीकुएंसी बोल सकते हैं या फिर थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। उस तो बाद जिहड़ी पर्टिकुलर स्टेट है 4 0 वाली, इहदी प्रोबेबिलिटी की है, मतलब इहदे होण दे चांसिस की है। देखो असीं रैंडमली 4 पार्टिकल्स थ्रो कर रहे हैं, 2 कंपार्टमेंट दे विच थ्रो कर रहे हैं, तो उहदी पॉसीबिलिटी की है, पॉसीबिलिटी मतलब उहदी प्रोबेबिलिटी की है। देखो इहदी इक्को ही स्टेट पॉसीबल सी 1, इक्को ही स्टेट है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, जे तुहानूं प्रोबेबिलिटी का बेटा फार्मूला ध्यान च होवे, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल केसिस टू टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसिस। हुण अपने कोल इक्वली लाइकली केसिस किन्ने ने, साडे कोल इक्वली लाइकली केसिस आ 16 दे 16 ने, क्योंकि 16 दे विचों कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्रैफरेंस नहीं है भी केड़ा होगा, 16 चो कुछ भी हो सकता है। ਇਹਦਾ मतलब ये 16 की ने साडे इक्वली लाइकली केसिस ने। तो साडा फेवरेबल केस की है ABCD, ये इक्को ही चांस है दा 1/16, इस करके दी प्रोबेबिलिटी आ गई। नंबर ऑफ फेवरेबल केसिस 1/16। जे असी नैक्सट दी देखिए, ये बेटा 4 केस बन रहे ने, देखो 1 2 3 4 4 चांसिस ने, 4 फेवरेबल केसिस ने, 4/16। ये 6 बनते हैं, 6/16। 1 3 वाली कॉम्बीनेशन दे 4 बनते हैं, इस करके प्रोबेबिलिटी 4/16। नैक्सट 0 4 कॉम्बीनेशन के लिए 1/16, क्योंकि यदा भी एक ही केस बन रहा है। क्लीयर है। हुण एक चीज़ ध्यान रखो, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स किन्नियां होणगियां किसी भी सिस्टम दियां, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होणगियां जिन्नियां पॉसीबिलिटीज़ ने। पावर च की आऊगा, जिन्ने तुहाडे कोल पार्टिकल्स ने, जिन्ने तुहाडे कोल डिफरेंट पार्टिकल्स ने। अगर तुसी मैक्रो स्टेट्स देखनियां ने किन्नियां होणगियां, मैक्रो स्टेट दा मैथड है, मैक्रो स्टेट्स होणगियां n+1, n+1 मतलब जिन्ने तुहाडे कोल पार्टिकल्स ने उह च 1 प्लस करो, उन्ने नंबर ऑफ तुहाडे कोल मैक्रो स्टेट्स बननगियां। देखो 1 2 3 4 5, तुहाडे कोल पार्टिकल किन्ने सीगे 4, मैक्रो स्टेट्स किन्नियां बनियां 5, ठीक है।
क्लीयर है जी माइक्रोस्टेट्स कढ़न का तरीका तो मैक्रोस्टेट्स कढ़न का तरीका। हुण इत्थे भी बेटा देखो मैं तुहानूं पहलां भी दस चुकी हाँ पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशेबल होना तो इनडिस्ट्रीब्यूशेबल होना भी मैटर करता है। अगर तुहाडे कोल हुण यही 4 पार्टिकल्स ने जिहड़े ਉਹ ਇਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ੇਬਲ ਨੇ मतलब वो सेम ने फिर की होऊगा फिर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ए इस तरह बन जाएंगे मतलब उत्थे ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ने दिस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ काउंटिंग है वो घट जाएगी। नैक्सट है माइक्रोस्टेट की डेफिनेशन की है The distinct arrangement of the particles of a system is called microstate। दस चुकी हैं बेटा थोनों मैं पहला डिफरेंट ਜਿਹੜੇ अरेंजमेंट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ माइक्रोस्टेट्स बोलते हैं। मैक्रोस्टेट की है arrangement of particles of system without distinguish them from one another is called मैक्रोस्टेट। मैक्रोस्टेट की है जिस सानू सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पता होए भी किमें किमें वो वंडे गए। फर्स्ट कंपार्टमेंट च 3 ने अगले च 0 ने ठीक है पहले च 2 ने अगले च 1 है ये मैक्रोस्टेट है। उस तो बाद थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इनू असीं W सिंबल दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं W। इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ मैक्रोस्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। एक मैक्रोस्टेट दे विच किन्नियां माइक्रोस्टेट्स ने मतलब सपोज करो तुहाडे कोल आह 2 वाली मैक्रोस्टेट है ये किन्नियां माइक्रोस्टेट्स ने किन्नियां ने 1 2 3 4 5 6 तुहाडे कोल 6 माइक्रोस्टेट्स ने। ਇਹਦਾ मतलब 2 वाली मैक्रोस्टेट दे होण दी देखो ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ 2 ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ 6। ਇਹਦਾ मतलब 50-50 अगर डिस्ट्रीब्यूशन ਹੁੰਦੀ है अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ਹੁੰਦੀ है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾमिक प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स। एक रिलेशन है बेटा न्यूमेरिकल्स वगैरह च काम आ जाता है। रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स। देखो बेटा हर एक माइक्रो स्टेट की सेम प्रियोरी प्रोबेबिलिटी होंगी है हर एक माइक्रो स्टेट। हुण देखो जिस तरह असीं टेबल किया सी ये टेबल च 16 केस बनते हैं। जिहड़ा फर्स्ट केस है ABCD ये एक 1 इंडिपेंडेंट केस है ये होने की प्रोबेबिलिटी 1/16 है। जिस तरह असीं ये वाले केस देखे ने 3-1 वाला केस देखे है ये हुण जिहड़ा आ वाला केस है ABC 4th पार्टिकल सैकेंड कंपार्टमेंट है ये अपने कल्ले दे होण दी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/16 है क्योंकि नीचे असीं की लैने हुंदे आ जिन्ने साडे टोटल केस बनते हैं। टोटल बेटा इस केस च 16 केस बनते हैं इस करके असीं नीचे 16 लिता। क्लीयर है। तो अगर असी एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी वो की होगी 1 टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ऑन द अदर हैंड अगर असी मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कढ़ते हैं तो वो मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी की होगी देखो एज अ होल। जिस तरह हुण मैक्रोस्टेट है दिस मैक्रोस्टेट ये सारे दी असी प्रोबेबिलिटी कढ़नी है ये सारे दी प्रोबेबिलिटी की होगी ये टोटल कितनी स्टेट्स ने 1 2 3 4 ये प्रोबेबिलिटी है 4/16 मतलब 1/16 फर्स्ट सैकेंड 1/16 थर्ड 1/16 फोर्थ 1/16 तो साडा आंसर की आ गया 4/16 आ गया। उसी तरह इतने 6 पॉसिबिलिटीज़ सीगियां 6 की आ गई 1/16 एंड सो ऑन तो 6/16 बन गया। तो एक मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी की होगी मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द मैक्रोस्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। दोबारा बोल रही हूँ बेटा मैं मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी की होगी वो टोटल माइक्रोस्टेट्स किन्नियां ने उस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट दे विच किन्नियां माइक्रोस्टेट्स ने अपॉन जिन्नियां टोटल ने। पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन द गिवन मैक्रोस्टेट नूं असीं की बोलते हैं थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन गिवन मैक्रोस्टेट।
ਤਾਂ ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ, W thermodynamic probability 1 upon total number of microstate, 1 upon total number of microstate ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਕਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਸਟੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਮੈਕਰੋਸਟੇਟ। ਮੈਕਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, देखो मैक्रो स्टेट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, भी जी पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह हो रही है, कित्थे किन्ने पार्टिकल्स पे ने, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। देखो हुण जिस तरह असी की पढ़ रहे हैं कंपार्टमेंट ले ले, पार्टिकल्स ले ले, पर एक्चुअली ये सारा कुछ की है, ये सारा कॉन्सैप्ट रिलेटिड है एनर्जी लैवल्स के नाल। जिस तरह तुहानूं पता ही है एटम का जिहड़ा स्ट्रक्चर है या एटम्स असीं देखते हैं कि उन्हां 'च शैल्स ने, सब शैल्स ने, तो उन्हां दी जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने वो किस चीज़ ते डिपेंड करदियां ने, वो इस चीज़ ते डिपेंड करदियां ने कि किहड़े शैल दे विच किन्ने पार्टिकल्स पए ने, वो पैरलर पए ने, वो एंटी पैरलर पए ने, उन्हां दी जिहड़ियां पोजीशनस ने वो उन्हां दी प्रॉपर्टीज़ नूं डिसाइड करदियां ने। यही चीज़ां अगे जाके साडे इन्हां कॉन्सैप्ट्स दे नाल रिलेटिड हो जांदियां ने। इहदा मतलब सानूं डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी है पार्टिकल्स दी अगर उहदी क्लैरिटी है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ એનર્ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਰਾਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द कंपार्टमेंट। ठीक है, एक्चुअली कंपार्टमेंट में भी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। मतलब ये कह रहे हैं कि कंपार्टमेंट दी अपनी कोई पर्टिकुलर एनर्जी या मोमेंटम हो सकता है कि मान लो अगर पार्टिकल किसी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट च पिया तो सपोज करो कि उसकी एनर्जी इन्नी है, अगर वो किसी सैकेंड कंपार्टमेंट के विच पिया तो सपोज करो कि उसकी एनर्जी वो तो डिफरेंट है। तो इस तरह पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी है वो सिस्टम का बिहेवियर तो उहदियां प्रॉपर्टीज़ नूं स्टडी करन दे विच काम आती है। नैक्सट टर्म है परमुटेशन एंड कॉम्बीनेशन। देखो परमुटेशन की है, कहना इन विच ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेकन इनटू अकाउंट एंड इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशेबल ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। मतलब कहता कि जदों पार्टिकल्स का आपस च अरेंजमेंट भी असी कंसीडर करते हैं। मान लो सपोज करो तुहाडे कोल दो पार्टिकल्स ने ए बी तुहाडे कोल दो पार्टिकल्स ने तो तुसीं उहनूं ए बी लिख रहे हो तो बी ए लिख रहे हो। की कॉम्बीनेशन लिख रहे हो, सपोज ए बी लिख लिया, बी ए लिख लिया, तो इत्थे दोनों कंसीडर होणगे। तो परमुटेशन दे विच असीं डिफरेंट अरेंजमेंट्स ने जिहड़े उहनां नूं कंसीडर करते हैं। तो सपोज करो तुहाडे कोल n पार्टिकल्स ने, तुसीं उहनां चों r एट ए टाइम कंसीडर कर रहे हो, तो उत्थे परमुटेशन का फार्मूला हुंदा है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बीनेशन दे विच की है, जदों असी ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट है जिहड़ा कंसीडर नहीं करते, मीनस जिवें तुहाडे कोल ए बी ते बी ए है तो इन्हां दोनों नूं असी एक ही मन्नांगे, इहनूं असी कॉम्बीनेशन बोलते हैं। मतलब पार्टिकल्स दा आपस च जिहड़ा अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स दा आपस च अरेंजमेंट कंसीडर नहीं करांगे। तो कॉम्बीनेशन का फार्मूला की है NCR, n पार्टिकल्स ने r एट ए टाइम कंसीडर किते ने, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, नीचे डिनोमीनेटर च r फैक्टोरियल। देखो बेटा r फैक्टोरियल दे नाल क्यों डिवाइड किया, परमुटेशन के नालों साडे कोल उरे एक फैक्टर एक्सट्रा आ रहा r फैक्टोरियल, ये क्यों लिता, क्योंकि पार्टिकल्स का आपस च अरेंजमेंट जिहड़ा है वो की है मीनिंगलैस है कॉम्बीनेशन के केस च। तो r फैक्टोरियल का मतलब हुंदा है पार्टिकल्स का आपस च अरेंजमेंट। तो असीं r फैक्टोरियल दे नाल डिवाइड किया ताकि ये जिहड़े डिफरेंट केस ज़्यादा बन गए ने जिहड़े वो खत्म हो जाण। आलसो NCR कॉम्बीनेशन का अगर असी फार्मूला देखिए तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल बन रहा है।
जे तुसी ध्यान नाल देखो बेटा तो आ सारा की है, यह परमुटेशन सी NPR अपॉन R फैक्टोरियल। तो NPR की हो गया, परमुटेशन की होगी NCR इंटू R फैक्टोरियल। क्लीयर है। अगर तुसी R दी जगह N लिख देने हो, अगर तुसी R दी जगह N लिख देने हो, मतलब कि तुसी सारे दे सारे कंसीडर कर ले, तो N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल परमुटेशन का फार्मूला सी। N फैक्टोरियल R दी जगह की लिखता N माइनस N फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल बेटा 1 हुंदा है, तो तुहाडे कोल आंसर की आ गया N फैक्टोरियल आ गया। मतलब परमुटेशन की सी, परमुटेशन अरेंजमेंट्स ने। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਅਸੀਂ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ r ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਗਰ n ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਟੋਟਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ NCN, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ n ਦੇ n ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਪੋਨ n ਮਾਈਨਸ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੂ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, n ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, 0 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਣ ਗਿਆ, 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਿਆ। क्लीयर है। उस तो बाद कुछ रिलेशनस ने बेटा न्यूमैरिकल्स वगैरह च यूज़ होंगे ने। NPR देखो असी आ किता NCR R फैक्टोरियल, ये इत्थों ले लिया R फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल लिखण का की तरीका है RPR। हुण देखो परमुटेशन सानू की दसदी है, परमुटेशन सानू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दसदी है। ओके, NCR सानू की दसदा है, कॉम्बीनेशन की दसदी है, नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स दसदी है। नंबर ऑफ मीनिंगफुल किन्ने ने, क्योंकि ये आपां आपस डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं करते। इनटू R फैक्टोरियल, ये की सीगे, ये मीनिंगलैस अरेंजमेंट सीगे, क्योंकि N फैक्टोरियल या R फैक्टोरियल किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल का मतलब है कि वो आपस च अरेंजमेंट्स किन्ने बनते हैं। तो ये जिहड़ा R फैक्टोरियल है ये की शो करता है, ये मीनिंगलैस अरेंजमेंट्स नूं शो करता है। तो टोटल अरेंजमेंट्स परमुटेशन नाल लिखते हैं, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स कॉम्बीनेशन दे नाल लिखते हैं, मीनिंगलैस अरेंजमेंट्स R फैक्टोरियल दे नाल लिखते हैं। जे तुसी R चूज़ कर रहे हो तो R फैक्टोरियल, अगर तुसी सारे चूज़ कर रहे हो तो N फैक्टोरियल। उस तो बाद बेटा 2-3 टर्म्स ने होर छोटियां छोटियां कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स की हुंदे ने, कॉन्स्टेंट कुछ कंडीशनस हुंदियां ने जिहड़ियां सिस्टम ते अप्लाई हुंदियां ने, ते फिर सिस्टम नूं ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਥਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਪਾਰਟੀਕਲਸ 2 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਥਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 1-1 ਵਾਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, मतलब ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲਗਾਈ कि साढ़े कोल 2 पार्टिकल्स ने, 2 कंपार्टमेंट ने, कंडीशन लगाई कि कोई कंपार्टमेंट खाली ना रहे। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे 2-0 या 0-2 वाली पॉसिबिलिटी की होगी, खत्म होगी, तो ये कंसीडर नहीं होगी। क्लीयर है, सिर्फ साढ़े कोल 1-1 वाली पॉसिबिलिटी रहेगी क्योंकि असी सिस्टम ते कंडीशन इंपोज की। नैक्सट है बेटा असैसीबल स्टेट्स, इनअसैसीबल स्टेट्स। असैसीबल किहड़ियां ने, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੈਸੀਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਇਨਅਸੈਸੀਬਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 1-1 ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੈਸੀਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 2-0 ਜਾਂ 0-2 ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਅਸੈਸੀਬਲ ਸਟੇਟ दैट कैन नॉट एग्जिस्टेंस इन द गिवन कॉन्सटेंट्स। क्लीयर है बेटा, इत्थे टॉपिक खत्म कर रही हूँ मैं अज दा। तुसी बेटा कोशिश करो सारे बच्चे कि सारा काम नाल दी नाल ही करो, तो अपनी बुक्स दे विच जिहड़े न्यूमैरिकल्स दिते हुए प्रोबेबिलिटी दे नाल रिलेटिड उन्हां नूं भी करन दी कोशिश करो। इन द एंड ऑफ द चैप्टर मैं भी करवाऊँगी तुहानूं कुछ न्यूमैरिकल्स। सो ओके, थैंक्स।